Alok. I'm 24 into 7, serving for the Manovikas family with my sweet daughter and my dedicated wife and one national awardee. As a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and the founder of Manovikas family, I love and celebrate diversity every moment in my life. Welcome to the special episode of Mashwara 45.0. Why it is special? Because we have the two gurus. Shiv Kumar sir is also my guru, and I know as of now कि देसाई सर शिव कुमार सर के भी गुरु रह चुके हैं. तो that's why this is There's a a very twist in the special, list. yeah, very special episode, and this is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during the coronavirus outbreak. आज मशवरा के इस 45वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है. आई वेलकम all our guests and audience. Today we are going to talk about the coping strategy for families. It is most awaited topic. दसाई सर ने भी बहुत बार चर्चा की थी कि ये टॉपिक पे बात करनी है. तो anyhow we have reached to this topic today. And आज हम परिवार के लिए जो एक तनावपूर्ण स्थिति है उससे जूझने रणनीति पर बात करेंगे. I welcome all our guests and audience. And I know how the people cope with the stressful situation. लोग कैसे तनावपूर्ण स्थिति से जूझते हैं because we have some experiences. But today we'll talk about in real sense. And coping occurs in the response to the psychological stress, usually triggered by the change in an effort to maintain mental health and emotional well-being. आमतौर पर किसी परिवर्तन से उत्पन्न मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता को समझना और आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से जूझने का प्रयास करना चाहिए. सो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं. सो देयर आर मेनी कोपिंग स्टाइल्स that people use, and some may prove more effective than others depending on the nature of a stressful situation and the persons who is employing them. So ineffective coping mechanism are also referred to as a maladaptive coping, may also be applied to stressful event in the internal conflicts, and often it is unconsciously it happens. लोग प्रायः जो अंतर्द्वंद होकर समस्या से मुकाबला करते हैं, और यह तनावपूर्ण स्थिति की प्रकृति है और यह प्रकृति जो है उस व्यक्ति पर निर्भर करता है. कभी कभी हम अप्रभावी तरीके से भी तनावपूर्ण स्थिति से निपटने से अक्सर हमारा समस्या जो है वो असाध्य हो जाता है. So if I recall in my life, sir, I'm just sharing my one experience of my life. I had used the coping strategies while I was in class 8th, and it was my mathematics class. My teacher had used all the punishment method for me to manage my behavior because I was used to speak before him. So whole class was getting disturbed. And one day my teacher in very jolly mood and very politely he said, you are very much outstanding, so stand outside the classroom. And what happened, I decided maybe I have used the counterproductive of coping mechanism, and I decided to stand outside the school, and I focus myself to engage to reduce my stress for being out of classroom. So some same time maybe my emotions has focused one on the son of a peanut seller, and he has the very severe disabilities. And maybe I nurtured my emotional health during that stressful period, and I involved myself with that child. So after a week I followed my all the attempts to reduce my negative outcomes being out of the classroom. And maybe after 7 days I brought that child into my classroom, and I followed this attempt to reduce my negative outcomes to bring that child into the classroom and let him sit with me in the classroom. Since I passed out from the school, and I have not avoided that coping characteristics by ignoring the issues. And today I love the diversity and the promotion of inclusiveness in my life. Maybe that coping strategies I have used in my life
that can be reflected. So मैं इसको हिंदी में एक बार फिर से बोल देता हूँ कि यदि मैं अपने जीवन में याद करता हूँ तो सबसे तनावपूर्ण स्थिति में मैं कब जूझा था, तो वो मेरे स्कूल की 8वीं कक्षा का गणित विषय का क्लास थी। और मेरे मेरे शिक्षक ने मेरे व्यवहार को मे भी प्रबंध करने के कारण सभी दंड विधि अपनाया था कि वो कभी मुर्गा बनाया, कभी बेंच पे खड़ा किया। और एक दिन उन्होंने कहा कि आप आउटस्टैंडिंग हो तो आप क्लास के बाहर स्टैंड हो जाओ। तो मे बी मैंने जो उस समय काउंटर प्रोडक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म यूज किया होगा या कुछ भी किया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना स्कूल के बाहर खड़ा हो जाऊं। और मैंने फैसला किया कि मैं स्कूल के बाहर खड़ा होऊंगा और कक्षा से निकल जाने का जो तनाव था मेरे मन में, वो मुझे लग रहा था कि मैं किसी चीज में अपने आप को इंगेज करूं। और फिर तभी मैंने एक मूंगफली बेचने वाले के एक बेटे पर मेरी नजर गई और मेरा जो इमोशंस था वो सारा उस बच्चे पर केंद्रित हो गया। और वह बच्चा बहुत ही सीवियर डिसेबिलिटी वाला था, सीवियर गंभीर दिव्यांगता से प्रभावित था। सो मैंने तनावपूर्ण स्थिति को अपनी भावना भावना से जोड़ा और उस बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया। और मेरे साथ जो एक नकारात्मक घटना घटी थी, उस परिणाम को कम करने के का प्रयास मैं कर रहा था कि मैं अगर मेरे घर वाले ये बात जान जाएंगे या और कोई जान जाएंगे तो क्या होगा। मैं 1 सप्ताह तक अपने आप को छिपाता रहा और 1 सप्ताह के बाद मैंने डिसाइड किया कि उस बच्चे को मैं अपने क्लासरूम में लाऊं और अपने साथ अपने कक्षा में उसको बिठाऊं। और जब मैं उस स्कूल से आउट हो गया तब भी वो भावना और जो वो एक कोपिंग मैकेनिज्म था, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर पाया इस तनाव को, और मैंने कभी इस तनाव से परहेज भी नहीं किया। और इसका परिणाम यह है कि मैं अपने जीवन में जो एक विविधता है, एक डाइवर्सिटी है और जो एक समावेशी सोच है, मैं जरूर उसको बढ़ावा दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फिट हूँ। सो आई थिंक वी हैव टू एग्जामिन व्हाट द स्टाइल ऑफ कोपिंग फिट फॉर यू। और मुझे लगता है कि हमें खुद जांच करना चाहिए कि किस तरह का कोपिंग मैकेनिज्म फिट होता है। और आज हमारे एक्सपर्ट भी हैं और मैं सभी मेहमानों का, दर्शकों का, सभी का स्वागत करता हूं। खैर मकदम, आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल। और मशवरा के इस 45वें अंक में जो हम लोग आज तनावपूर्ण स्थिति से जो जूझने की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, सो इसमें आप सभी का स्वागत है। वी आर ऑल्सो लाइव ऑन द फेसबुक एंड दिस इज फॉर whole concept is for coping mechanism. तो आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं, they will tell you different kind of ways you can find out. And I once again welcome and appreciate our guest for this important topic. And I welcome our expert and today's we can say the chair of the session, Dr. Nimeshji Desai sir. So he is a director and professor in psychiatry and he is a president of Manovikas Charitable Society. So we welcome you, sir. And we have other guest, Sir T.C. Sip Kumar sir, and he is a formerly director of National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Formerly it was known as the National Institute for Mentally Handicapped, NIMH, and he has been also the former director of Department of Empowerment of Persons with Disability, Divyangjan, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, and he is a senior clinical psychologist. So we welcome you all. And we have the sign language interpretation by Rakhi Ramola. So मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा में लाइव होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं डायरेक्ट डॉक्टर निमेश जी देसाई सर के पास जाना चाहूंगा कि व्हाट नहीं, we'll start with Shiv Kumar sir. Okay. So I'll go directly. I'll go to Dr. Shiv Kumar sir, and yes sir, welcome sir. He's so experienced. Yes. Well, sir, I would definitely like to start with my congratulations and thanks to Alok Govan, as well as I would put my thanks to Dr. Nimesh Desai, who was my teacher way back in 1985. And after that, we got many occasions and very many opportunities to work together in various forums. And I would like to thank Dr. Nimesh as the president of this Manovikas also. Sir, we have a very interesting topic today for our discussion, which is the coping strategy required for the families. First of all, we should have some idea. A coping matlab kya hai? See, we all have our
basically, if you say that you take a behavior, any behavior, if you see that before the behavior, there will be something which make or prompt the behavior to be a behavior. Or we say that either something before the behavior or something after the behavior which make a behavior to continue. We call it in a simple way as ABC. If B is the behavior, there is an antecedent, that is इसके पहले कुछ हो रही है, वो behavior होने के लिए, नहीं तो there is a consequence which makes us to continue that behavior. This goes with everybody. This goes with everybody. But then what happens is कभी-कभी हमको ऐसे होते कुछ unexpected even हमारा day-to-day activities में, and this unexpected can be a change in our daily routine activities. And any change which is away from the routine activities can give us a stress. We all have probably a belief that stress is always negative content. Even a positive event can also create or take us to a stressful event. So it is something like a psychological mechanism which we are using basically to understand or to respond other than our routine conditions of our daily. And the unexpected negative events can be anything starting with a small expectation which is not forthcoming, or maybe a loss of an event, loss of a life, or loss of a very loved object. All these things can definitely lead us to a condition where we may react other than our normal way of reaction. Whereas positive things we may not notice very often, but even sometimes a good event, a pleasant event can also be a change from our routine life. You get a promotion, for example. You get a promotion and then you are happy, but you go to know that this promotion has a higher responsibility with you, which you have to prepare yourself to meet that higher responsibility. So you have a challenge. And some people take it as a stress that they are not able to immediately plan how to make these changes. You got married, and then suddenly your role changes. You become a husband. You become maybe a son-in-law. So all these life events, maybe a pleasant event, may also trigger us to hope something, plan something to deal that situation to be in the normal. So we need to keep in mind that it is not that always stress is negative content. Stress can be, or coping style requires to meet our pleasant events also. And it is basically the strategies which we are using, the behaviors, thoughts, the emotions, which will make us to adjust to the changes that occur in our life. So coping style is something some people get it naturally, or some people have to plan it in a proper manner. And sometimes this planning can be very successful. Sometimes the planning may not even result in the way which you expected or others would receive it. Alok ji had gone to his school level, and that is a long school level incident he had described. Let me tell you my experience which happened yesterday. With a very excited mood, I wanted to wish Dr. Desai yesterday. So I sent a message to him that, sir, we are meeting today. So after some time, I got a message that what meeting? Which meeting? And please tell me in detail. So I got a shock in my life. Meeting is today. And yesterday, sir says, what meeting, and give me more details. So I prepared myself. What is this? I had a feeling that sir is not aware of it. And Bhuvanji has bypassed sir and given me the complete information. So many thoughts came to my mind.
So I prepared myself. I didn't realize that I'm coping myself. I'm trying to get into a situation which I was not expecting. And later it all ended in a very good, humorous manner that Sir really pleased me. Sir really put me in an ease with his second message. This happens to everyone. We don't realize it. We definitely use our coping styles whenever there is a slight challenge, whenever there is a slight change in our ongoing behavioral pattern. And this can be a long procedure. This can happen multiple times in a day. This can happen to some people as a lifelong situation. The thing style is that we all have our predisposed, we all have our personality pattern. Some people are very, very outgoing by nature. Some people are introvert in nature. Some people are ambivert in nature. So this has also an impact on the way we are planning or the way we are actually reacting to a change or a challenge in our unexpected events in the life. Generally, we can say that there is a harmonious way of responding to a unexpected event, and some people it may be an inharmonious way of responding to the situations which we feel it as a challenge. And take the unit of home, for example. In a home, even if it is a nuclear home also, you always have to see that there is interaction between the father and mother, or it could be the husband and wife. There is interaction between the children. So father has interaction with the son, father has interaction with the daughter, mother has interaction with the son, mother has interaction with the daughter, daughter has interaction with the sister has interaction with the brother, or brother has interaction with the sister, and now the son with the father, son with the mother, daughter with the father, daughter with the mother. So it's a complex situation which has full of dynamics involved in the day-to-day affairs of life. It goes on unless there occurs a challenge, unless there occurs a triggering factor which goes out of the way of our normal routine life pattern. So this is something which some people take it for granted, that the coping style occurs automatically. And for some, it is in a harmonious manner, whereas some, it is in an inharmonious manner. As I said, a continuous pattern of this coping style requirement occurs when there is a life-threatening component on, or when there is a lifelong situation prevailing in the house, which may require the attention of entire family members, or that of the parents, or that of the child with the parents. Let's take the situation wherein we have a child with disability at home. We have recorded the reactions of parents. The moment the parents come to know it is a long, we have seen very many emotional stages occurring to the parents. First, they have a shock, then they have a denial, then they have an anger, then there is a blaming. So it goes on till after a long time with the support of the professionals to come to the level of a reconciliation of the situation. So each of this situation at a home, when you have a child with disability, then you see that the shock is something that, oh, my child is a child with disability. So there is an enormous feeling which goes through the parents, and then there is a denial happens. It may be a wrong diagnosis made by the doctor, and there could be a reaction to the doctor, that anger.
The first person who says that the child with a disability, the parents, it is stated that the parents develop an anger towards that doctor, that the doctor is the first person who said that the child has disability. The blaming starts. Maybe the father says it is a reason because of the mother this has happened. The mother says because of the father it has happened. Then they get into the family history. The father says, I knew your mother's people all had mental illness, and then now you brought my child to this condition. So this kind of triggering many times can hamper, or many times can totally disturb the whole pattern of the life, situations at home. And its impact on the other siblings in the house, and its impact on the other members in the house, parents or any other excess were real requirement of inducing or imbibing or teaching the coping styles to the parents or to the family members. Well, this triggers even some sort of, apart from the psychological component which comes as a result of this unexpected event at home, which they are trying or striving to cope with the situation, may lead to psychological impacts like an anxiety formation, like a depression, psychological impacts like a kind of anger towards everybody. You take the anxiety situation, the parents become so much involved to find out what is that we have to do for this child. They are planning their coping strategies as to how we will overcome or how we are going to face this situation of a child which demands more attention, demands more time, demands more physical requirements, demands more financial management, demands more space, demands the attention of additional resources. All these components will trigger to an anxiety that what is that in front of us. And this anxiety over a period of time may lead to a situation of sadness. I'm not able to meet the complete fulfillment of my child's requirements. A sadness over a period of time can lead to a situation of depression. And that depression may lead to a situation of people think that ideas of worthlessness. Just one child, so much of demands, and the child requires attention, the child requires special need, special techniques to deal with his requirements. All this make a parent or make the parents or make one of the parents to think about ideas of worthlessness. Ideas of worthlessness will lead to a condition that I don't think I will be able to do anything with the child. I don't think I'll be able to do justice to my spouse. I don't think I'll be able to do justice to my other siblings. And then slowly the thinking of why should I live in this world? This is the beginning stage of a very unfortunate situation that they get a suicidal ideation. They think that the entire life is over. I'm not able to do anything. And the best way is to say that I may disappear from this situation so that I don't have to face it again. So imagine if coping style leads to a situation where the family members think about ending their life is at the extreme level. The coping stage, which some people take it as something like the situation leads to milder tensions, leading to big kind of arguments, leading to expression of arguments, leading to assault, physical assault, and then that leads to a very violent situation. The coping style totally changes.
This is where we feel that the parents and the family members at home will extra attention or extra demands. Definitely, it will be the responsibility of the professionals to get into and see that where exactly the level of coping stands. How this coping is affecting the child as well as the other factors. Something very important that we all need. Coping styles can be taught. Coping styles can be extended for in a betterment of everybody in child. The concept of inclusiveness come into this picture. It is not that only the father decides. It is not that only the mother decides. It is not that only the other family members or the sibling decides. It has to be a complete, composite, comprehensive approach to ensure that everybody has a pleasant situation. Everybody meet this situation in a normal way so that there is no negative impact of the child's presence in the family. We have excellent situations, we have excellent organizations, we have excellent service providers, and thanks to the present level of various components which has come into the feature, now in India, we can very proudly say that we have a very strong legislative support. We have a very strong NGO support. We have a very strong multidisciplinary therapists which are equally proficient when you see that how best we will be able to support the requirements for challenging situations of the people who face this peculiar situations. I want to give a small break here. I would like to see how Dr. Desai sir is going to see this situation in his perspective. Namaskar. First of all, Shiv Kumar, sorry, my apologies. हमें आप लोगों में से कुछ लोग जो मुझे और मेरी कार्यशैली को समझते हैं, जानते हैं थोड़ा बहुत, उनको शायद थोड़ा आइडिया हो. कई बार इतनी चीजें एक साथ होती हैं कि जो जैसे शिव कुमार ने कल कहा, आलोक की हमारी बहुत पहले बात हुई थी कि ये करना है. मैसेज आई डोंट थिंक देखा भी था मैंने. तो व्हेन शिव कुमार सेड यस्टरडे कल मिलते हैं, आई सेड अबाउट व्हाट, वेयर, और इन पर्सन मीटिंग तो अब होती नहीं है, बट वेरी नाइस. शिव कुमार, आई मस्ट से Shiv Kumar continues to be across 35 years that I have now known him as sweet and simple and forthcoming as he was in 1985. That's wonderful. He was one of my favorite colleagues at that time. And like he said, it's continued. Alok is continuing great work, Shiv Kumar. But हम सब एक दूसरे के ही प्रशंसा करते रहे, उससे ज्यादा आगे बढ़ते हैं. We are all three very fond of each other. That's wonderful. Coping by families, and I suppose we are talking about coping by families in the context of IDDs. तो जैसे डॉक्टर शिव कुमार अपनी बातें कह रहे थे, मुझे विचार आया कि and I'll do bilingual, Hindi and English both, I think, Alok, as people have said, है ना? That will be great. तो what I realized is that हम शायद जैसे डॉक्टर शिव कुमार ने थोड़ा शुरू किया, बुनियादी चीजों से बात करें. कोपिंग या सामना करना या जूझना. Coping maybe is essentially what? Three components to that. Coping with difficulties या problems, कोई मुश्किल हो या मुश्किल हालात हो. Second, you cope to find solutions. Three, you want to find solutions maintaining a healthy balance. So the three essential parts are
कि कोई डिफिकल्टी है या डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस है, बहुत खतरा है, एक पहला मुद्दा। दूसरा, हम उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तोड़ ढूंढना चाहते हैं, और ऐसा हल हो जो बैलेंस बनाए रखे। हर एक व्यक्ति का आंतरिक जो बैलेंस है, मानसिक, वो भी, each individual's internal mental well-being and peace as well as across persons। तो जाहिर है प्रणालीगत तरीके में जैसे 50, 60, 100 साल पहले दिव्यांग जन को देखा जाता था, मुझे इसे भी याद आया, जरूरी है कि अब विचार काफी बदल गया है और त्वरित गति से रोज बदल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस नजरिए से दिव्यांग जन को और दिव्यांग जन की स्थिति को समझा जाता था, देखा जाता था परिवार में, समाज में, जाहिर है उसको मुश्किल समझा जाता था। जैसे हमने बहुत बार इन वेबिनार्स में सुना है, आज 45th है और बहुत जगह और भी सुना है, और आप में से कुछ लोग एक्चुअली इसको जी रहे हैं कि दिव्यांग जन हमारा बच्चा या भाई या परिवार में कोई है तो पहला मुद्दा है कि उसको हम समस्या ना समझे। बट डिफिकल्टी है, कुछ मुश्किल है, मुझे लगता है इससे भागे भी नहीं, और वो बात आगे करेंगे 2 मिनट में। तो एक तो ये हुआ मुद्दा। जैसे जैसे डॉक्टर शिव कुमार और डॉक्टर आलोक ने दोनों ने कहा, हो सकता है समस्या छोटी सी हो, किसी 5 मिनट की, 10 मिनट की, उस दिन की, या बड़ी वाली हो, लंबे अरसे की, जैसे हमारे दिव्यांग जन के परिवारों के साथ है। दूसरा, प्रैक्टिकल या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो। तीसरा, जैसे डॉक्टर शिव कुमार ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, इमोशनली, जज्बात में, इमोशनली was shocked and surprised that I am saying what meeting, you know। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज भी अलग हैं, जिसके लिए कोपिंग अलग होना पड़ेगी। सच्चाई ये है कि हम लोग सामाजिक रूप से, मानव समाज और प्रोफेशनल्स और जो परिवार हैं सब, वो दिव्यांग स्थिति को पॉजिटिव तरीके से देखने लगे हैं। ये जाहिर है बहुत उम्दा चीज है और बहुत काबिल तारीफ है, लेकिन हम इस चीज को भी स्वीकार करें, मुझे लगता है साथ साथ, कि समस्याएं दिव्यांग जन के परिवारों को हर पहलू में है और होती रहती है और होती रहेंगी कुछ हद तक। तो द रिक्वायरमेंट फॉर कोपिंग बहुत जरूरी है, इसको हम नजरअंदाज ना करें। एक दूसरे तरीके से देखें, कोपिंग के क्लासिफिकेशन 2-3 हुए हैं और आप लोग सब समझोगे अलग अलग तरीके से। कुछ जगह कहा जाएगा पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कोपिंग। वो आसान है समझना कि भाई जो प्रेरणा करे, जो और बढ़ाए अच्छे बर्ताव को, वो पॉजिटिव कोपिंग है और किसी को परेशानी ना करे। नेगेटिव कोपिंग भी हो सकती है, ज्यादा गुस्सा या कड़वाहट या बर्ताव ऐसा हो जाए। तो एक डिस्टिंक्शन है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव कोपिंग का, वो समझना आसान है, अमल करना आसान ना हो लेकिन समझना आसान है। दूसरी एक क्लासिफिकेशन होती है हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कोपिंग। खासकर जहां स्वास्थ्य की बात आती है, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य की, वहां बात हो जाती है हेल्दी या अनहेल्दी कोपिंग की। तीसरी क्लासिफिकेशन होती है जो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड है, आप सब लोग आई एम श्योर गौर करेंगे, एडप्टिव वर्सेस माल एडप्टिव कोपिंग। भाई ऐसी कोपिंग जो समझदारी से की जाए, जो ज्यादातर व्यक्तियों को संतुलन दे और समस्या और ना बढ़े। तो जहां दिव्यांगजन की बात आ जाती है, वहां पॉजिटिव और नेगेटिव कोपिंग तो फिर भी मुझे लगता है परिवार खुद समझ लेते हैं और एक दूसरे की मदद कर लेते हैं। हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो मदद कर सकते हैं, या जो तजुर्बेकार परिवार है वो दूसरे परिवारों की मदद कर सकते हैं सेकंड और थर्ड लेवल की बात समझने में, कि खुद की हेल्थ के लिए जो अभिभावक है, जो पेरेंट है, जो केयर टेकर है, उसके लिए कौन सी कोपिंग हेल्दी या अनहेल्दी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई माँ या कोई बाप या कोई बड़ी बहन दिव्यांगजन की देखभाल करने में अपने स्वास्थ्य को और बिगड़ने दे। और तीसरा लेवल और ज्यादा जरूरी है, एडप्टिव कोपिंग, समझदारी की कोपिंग जो सबके लिए अच्छा रिजल्ट लाए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन सेंट्रल मुद्दा है, जैसे डॉक्टर शिव कुमार क्लिनिकल साइकोलॉजी से ट्रेंड और बहुत अच्छे हैं,
इन्होंने दिव्यांगजन के लिए पूरा अपना जीवन और करियर बिताया। गौर करें, कोपिंग बुनियादी रूप से एक मानसिक प्रोसेस है। किसी भी समस्या का, मुश्किल हालात का मैं परसेप्शन कैसे करता हूं, उसका हल कैसे ढूंढता हूं, ये साइकोलॉजिकल इश्यू है। जाहिर है जो साइकोलॉजिकल इश्यू है उसके सामाजिक असर हैं। देयर आर सोशल इफेक्ट्स एंड मैनिफेस्टेशंस ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कोपिंग। वो एक्सटर्नल रिजल्ट हुआ कोपिंग कैसे करते हैं उसका, बट इसेंशियली एक इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और जाहिर है जैसे डॉक्टर शिव कुमार कह रहे थे, इवन हम सबके आम जीवन में कोपिंग सबकी एक सी नहीं हो सकती, एक प्रकार की नहीं हो सकती। अलग अलग व्यक्ति की कोपिंग बहुत सारे कारणों को लेकर अलग अलग प्रकार की होगी। सबसे अहम मुद्दा शायद ये है आज की बातचीत का, मुझे लगता है कि कोई आदर्श तरीका नहीं है कोपिंग का। देयर इज नो परफेक्ट वे ऑफ कोपिंग। ये हम गौर करें, हम सब के लिए, और खासकर जो हमारे दिव्यांगजन के परिवार है। तो हमें आइडियल को, आदर्श को ढूंढने में अपने आप को परेशान नहीं करना है। देयर इज अ रेंज, बहुत सारी कोपिंग स्ट्रेटेजी या कोपिंग स्टाइल्स हो सकती हैं जिनको हेल्दी या अनहेल्दी या एडेप्टिव या माल एडेप्टिव या नॉर्मल या एबनॉर्मल समझा जाए। तो वो कोई एक केंद्र बिंदु नहीं है कि हम सब ने ऐसे ही कोप करना है। जैसे हालात हैं, बाहरी हालात, जैसे आर्थिक स्थिति है, जैसे सामाजिक स्थिति है, जितना सपोर्ट अवेलेबल है परिवार में, जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्या को कितना इलाज से या पुनर्वास के असिस्टेड टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है, और बहुत सारे मुद्दे। और बुनियादी रूप से अगर मैं हूं तो मेरी पर्सनालिटी एक अभिभावक के रूप में कैसी है, उसके मुताबिक तय होगा कोपिंग। तो मुझे लगता है बहुत सारे समय ये बर्डन हो जाता है कि मैं ठीक से कोप नहीं कर रहा, मैं ठीक से कोप नहीं कर रहा। अगर संशय उठता है तो लाजमी है, अच्छा है, लेकिन उसको कोई एक मापदंड के अगेंस्ट ना मेजर करें। अपने साथियों से, साइकोलॉजी से, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी से, स्पेशल एजुकेटर से, किसी भी प्रोफेशनल से बात करें तो ये ढूंढें कि क्या मैं मोटे तौर पे सही कोप कर रहा हूं या नहीं, और मैं जो कोपिंग कर रहा हूं क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, जो दिव्यांगजन है मेरा परिवार का सदस्य, क्या उसके सबलीकरण के लिए वो ठीक है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या हम सबके बीच संतुलन उससे बना रहेगा, पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। जो आलोक याद दिला रहे थे, हमने आई सॉ अनिल जैन इज हियर। अनिल, आई एम सो सॉरी आई मिस योर टॉक लास्ट टाइम. Anil is so experienced and so positive and so constructive a caretaker and activist, और बहुत सारे आई एम श्योर हैं जो हमारी बहुत बड़ी बात हुई। अनिल जोशी, अनिल जोशी जी, या सॉरी, अनिल जोशी, अनिल जोशी, सॉरी, अनिल जोशी, अनिल जोशी, अनिल जैन, सॉरी, अनिल जोशी। तो परिवार शायद 200, 250, 300 साल पहले विश्व स्तर पे, सारे विश्व समाज में ज्यादा सिमिलर था, एक सा था। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जैसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी हुई, जैसे सामाजिक बदलाव आए पाश्चात्य देशों में, सामाजिक ढांचा और पारिवारिक ढांचे बदल गए। फैमिलीज ऑलमोस्ट बिगेन टू बिकम स्मॉलर, न्यूक्लियर, लेस केयरिंग, मोर डिस्टेंट, मोर इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष का महत्व हो गया परिवार के अगेंस्ट। जो अक्सर कहता हूं, जो सामूहिकता है भारतीय और दक्षिण एशिया के समाजों की और परिवारों की, वो यूरोप और अमेरिका में मैं कहूंगा कम है, डेफिनेटली अलग है। तो दैट कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म बिकम्स वन मेजर फैक्टर व्हिच डिसाइड्स the family style and the family situation, which will then decide the coping. अक्सर पाश्चात्य देशों में, पाश्चात्य समाजों में या तो एक केयरटेकर है या ऑफिशियल केयरटेकर्स है, जो सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र के प्रोफेशनल मोस्टली या वॉलंटियर केयरटेकर्स है। तो ये एक बदलाव है। और बड़े से स्तर पे सोचें, जो हमने 2-4 बार बात किया, आलोक ने याद किया, मुझे लगता है मिथ्या रूप से, लेकिन 50, 60, 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ
जैसे मैं अंग्रेजी में अक्सर कहता हूं, बहुत गीत गाए जाते थे अबाउट द ग्रेट इंडियन फैमिली. There are two things that I want to say. One, it was not correct even at that time. Secondly, it is definitely not correct by now. तो हम ये गलतफहमी न करें. दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज कि भारत में या दक्षिण एशियाई समाज में जो परिवार करता है वो अच्छा ही होता है या भले के लिए ही होता है या अच्छे ही रिजल्ट्स आते हैं. जाने अनजाने में कई बार प्रैक्टिकल कारणों से, आर्थिक या सामाजिक भावनात्मक कारणों से और दूसरे कारणों से बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट्स इन जनरल इंडियन फैमिलीज में और खासकर दिव्यांग जनों के परिवारों में देखे गए हैं. तो हम इस सच्चाई को स्वीकार करें. और इसीलिए अगर आप गौर करें, 1995 का कानून, 2016 का कानून क्यों बनना पड़ा? अगर समाज और परिवार पूरी तरह से हर दिव्यांग जन की सही में देखभाल कर रहे होते और ऐसा कर रहे थे और कर रहे हैं, तो कानून को और समाज की तरफ से कानून को दखल करने का हक होना नहीं चाहिए, न कोई लाजमी बना है. लेकिन ऐसा अक्सर बहुत अलग अलग कारणों से नहीं हो पाता है. न सिर्फ उन दिव्यांग जनों के साथ जो बेघर है या घर पे है या इंस्टीट्यूशंस में है, लेकिन इवन उनके साथ जो घरों में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं. फर्क हमें ये करना होगा, हम अफेक्टेड फैमिलीज हो, हम केयर टेकर्स हो, हम प्रोफेशनल्स हो. एंड ये मेरा थर्ड शायद इंपॉर्टेंट मुद्दा है. क्या जो चीज कोपिंग में अगर सही नहीं हो रही है, अगर क्या वो कुछ वाजिब कारणों से है? क्या परिवार लाचार है, बेबस है, परिवार मुद्दे को समझ नहीं पा रहा है या उसकी क्षमता के बाहर है? तो हम सबको चाहिए कि हम परिवार को और सपोर्ट करें, मदद करें, इनफॉर्मली, सेमी फॉर्मली, फॉर्मली. अगर कोई जेन्युइनली, जैसे समाज में है, नेगेटिव एलिमेंट्स हैं पारिवारिक, तो जाहिर है कानून का और समाज का न सिर्फ हक है, उसका दायित्व बन जाता है कि वो उस दिव्यांग जन को या तो उस परिवार में ठीक से देखभाल करवाए या उसको और कोई ऑल्टरनेटिव सेटिंग दे. So I will say one more time that this whole myth about the Indian and South Asian family being always good and always perfect and always doing everything well, we must review and review in every situation. खासकर जैसे मैंने कहा, कोपिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है. हम लोग सब व्यक्ति विशेष के रूप में बहुत सारा बर्ताव ऐसा करते हैं जो शायद हम चाहते नहीं है. न चाहते हुए या अनजाने में हम ऐसा बर्ताव करते हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ. जो फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस का मैकेनिज्म रखा था, फ्रॉइड की थियरीज को आज हम माने ना माने, उसकी तरफ को फॉलो करें ना करें, इतना तो हम सब मानेंगे कि साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हमेशा अपनी इच्छा और अपने विचारों के मुताबिक नहीं होता है. बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग आवर बिहेवियर एंड कोपिंग इज वेरी ऑफन नॉट इन आवर कंट्रोल. सो जहां जहां ठीक बर्ताव मान लीजिए दिव्यांग जन के साथ परिवार के द्वारा नहीं भी हो रहा है, या दिव्यांग जन की देखभाल करने में परिवार या केयर टेकर खुद पे बोझ ज्यादा ले रहा है, तो वो भी जानकारी की और ऑल्टरनेटिव्स की कमी के कारण हो रहा है. तो हम प्रोफेशनल्स को, समाज को और सरकार को और कानून को, मुझे लगता है, और मेरा चौथा शायद पांचवा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एज अ स्टार्टिंग स्टेप हमेशा फैमिली के और केयर टेकर्स की सिचुएशन को और उनकी डिफिकल्टीज और लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करना चाहिए. एंड दैट इज वेयर प्रोफेशनल हेल्प शुड ऑलवेज प्रीसीड लीगल एक्शन. कानून बन गया है, यूएनसीआरपीडी हो गया, आरपीडब्ल्यूडी है, बहुत अच्छी बात है कि जहां दिव्यांग जनों की प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां प्रोटेक्शन होनी चाहिए और कानून और सरकार ये करेगा. लेकिन अगर हम, और यहाँ कुछ दक्षिण एशियाई समाजों का फायदा हो सकता है. यूरोप और अमेरिका में शायद सामाजिक स्थिति इस कदर बदल गई है कि कानूनी एक्शन पहले होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है. हमारे समाजों में पहले हमें यह करना चाहिए कि हम उस परिवार से और केयर टेकर से बात करें, परिस्थिति को समझें, अगर हो सके तो एक सौहार्दपूर्ण सॉल्यूशन निकालें, ना हो सके तो फिर लीगल एक्शन जरूरी माना जाए. तो that's my point number 5. The sixth and the last point perhaps
बिफोर वी कम टू द डिस्कशन इज, जैसे हमने बहुत बारी यहाँ बात किया और ये समझना थोड़ा मेरे पहले वाले मुद्दों से जुड़ा हुआ है, हमें मदद करना चाहिए हम प्रोफेशनल्स को, समाज को, even by public campaigns, and this is where Anil Joshi kind of caretakers, parents and activists and policy makers can be huge asset. केयरटेकर के खुद के लिए या दिव्यांग जन के लिए, दोनों में से किसी के भी लिए अगर कोई स्टाइल या कोई कोपिंग या कोई मेथड नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है तो उसको पहचाना जाए। कॉमनेस्ट इज हमारे समाज में ओवर प्रोटेक्शन, जो हमने बात किया है, मैंने हिंट भी किया 10 मिनट पहले कि अगर कोई केयरटेकर या फैमिली ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है कि हमारा दिव्यांग जन बच्चा कुछ नहीं कर सकता, नहीं इसको संभाल के रखो, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, यू नो, हैंडल विथ केयर, ग्लास हैंडल विथ केयर। इफ यू डू द ग्लास हैंडल विथ केयर अप्रोच, तो आप न सिर्फ उस व्यक्ति के एम्पावरमेंट को नहीं करने दे रहे हो, आई वुड से कि एम्पावरमेंट को जाने अनजाने में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, डिले कर रहे हो। तो बदलते हुए वक्त के साथ, बदलते हुए सोच के साथ हमें ये सबसे पहले करना पड़ेगा कि एप्रोप्रिएट केयर, एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन, बट नॉट इवन अ डिग्री ऑफ ओवर प्रोटेक्शन, इंडीड केयर एंड प्रोटेक्शन विथ एक्टिव एफर्ट एट एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस, वो मोटो एक हो। दूसरा हो जाता है सैक्रिफिशियल, जो परिवार के खुद के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हमने एक बार इन्हीं वेबिनार्स में बात किया है, मानसिक बीमारी हो, आईडीडी की इश्यू हो, बहुत सारे और सिचुएशन में परिवार को बहुत गिल्ट रहता है इवन अपनी छूट लेने में। भाई 4, 5, 10 साल से अगर कोई परिवार या केयर टेकर दिव्यांग जन की मदद कर रहा है, उसके साथ जीवन बिता रहा है, पॉजिटिव बिता रहा है, बहुत अच्छी बात है। रिस्पाइट केयर is not a sin. So अगर इबास में कोई फैमिली आके, हमारे यहाँ होता भी कम है, मैं बताऊं, हमारे डॉक्टर भी कम तैयार है और परिवार भी कम तैयार है, but I would want and I would like a situation where if a person with mental illness is staying with the family or person with IDD would come to Alok or any one of us and say, look Dr. Sahab, I have been doing this for 5 years, I need and I want a vacation for 1 week or 2 weeks for myself. Will you please look after him or her? जो रिस्पाइट केयर का बेसिक फंडा है वो बहुत जरूरी है और हमारी तरफ से सामाजिक ब्लॉक्स बहुत हैं। समझिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक तो होगा बर्नआउट सिंड्रोम, अगर होगा तो चर्चा करेंगे, समय रहेगा। दूसरा होगा केयर टेकर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये मुद्दा शायद हमने बात नहीं किया है इन वेबिनार्स में। किस समय में शिव कुमार और हम साथ काम कर रहे थे बेंगलोर में 35 साल पहले, और जब मैंने भारतवर्ष के राज्यों में या बाहर ट्रैवल करना शुरू किया, एयर ट्रैवल, तो आप सबको अब ध्यान होगा वो जो वीडियो कैसेट होती है, जो स्टाफ एयरलाइन का आपको कहता है मास्क के बारे में, वहां एक मुझे 85-86 में आई यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री बिकॉज द वीडियो इन वन ऑफ दोस एयरलाइंस वुड से, अगर ऑक्सीजन प्रेशर गिर जाए तो मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग या बच्चा है तो पहले आप अपना मास्क लगाएं फिर बुजुर्ग को या बच्चे को लगाएं। मैं जो कह रहा हूं भारतीयता, वो हम सब उसके थोड़े शिकार हैं। मुझे लगता था ये क्या बात हुई भाई, अगर मेरे साथ बुजुर्ग या बच्चा है तो मैं पहले उसको लगाऊंगा, अपनी केयर थोड़ी करूंगा पहले। लेकिन फिर समझ आई साइकियाट्री, मेंटल हेल्थ, डिसेबिलिटी में काम करते हुए कि वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या हम किसी की देखभाल कर पाएंगे अगर हम ठीक होंगे। अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो देखभाल करना हो नहीं पाएगा और शायद हम और नुकसान करेंगे। सो केयर फॉर द केयरर्स, especially the family carers, even if there are paid carers hired by the family or professional carers in homes, जहां भी हो। मेरा that's possibly my 7th point. Formal, semi-formal, informal systems and sensitivity for care for the carers.
I will stop there and really want more discussion. There are far too many people. विनय भाटिया जी हैं, अनिल जोशी तो है ही है, और हेमलता सूरी है, बहुत सारे और साथी हैं, and of course Alok, you and Shiv Kumar. I hope we can have a very good discussion. Let's see how. I will request the audience and participants if they can unmute themselves and then they can ask any questions. Yeah. Yes. Anybody who can I wants have to a talk speak? with doctor? Oh, I'm sorry. Please. Anybody Hello. who wants to speak? Yeah. Yes, myself Avtar Singh from Jharkhand, जी सर, Jamshedpur, जी। Jharkhand. नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार, और जितने अटेंड कर रहे हैं, बहुत यूजफुल आपकी प्रेजेंटेशन थी। मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं पिछले 36-37 सालों से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को खेल कूद के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहा हूँ। मुझे कोचिंग के समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है कि किसी बच्चे को अपनी फिजिकल लिमिट का पता नहीं होता। अगर उसको 3-4 राउंड दौड़ाए जाए तो अचानक वो गिर जाते हैं। कोई ऐसे भी हैं जिसको भूख का पता नहीं है कि कितना पेट भर गया है, वो उल्टी करके फिर खानी शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे भी हैं जिसको चोट लग जाती है, खून निकल रहा है, लेकिन उनको दर्द महसूस नहीं होती है। तो एक कोच और पेरेंट्स के लिए ऐसी स्थिति में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या आप इसका सलूशन बताएंगे? धन्यवाद। सॉरी, मैं नाम आपका नहीं कैच कर पाया। अवतार सिंह is the coach, sports coach in Special Olympics. एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए रीजनल ट्रेनर हूँ। ओके, राइट, हाउ नाइस। आप जो कह रहे हैं भाई, मैं अगर सही समझाऊं, मैं अपने विचार बताऊं, शिव कुमार जी या लोग अपने बताएं। जैसे बाकी चीजों में हम कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिव्यांग जन को हमारे समाज और उसी मापदंड से देखा जाए। तो जो आपने बात उठाई वो हम सब के लिए सच है, वो दिव्यांग जन के लिए भी सच है कि व्यक्ति को खुद या उनके अभिभावकों को उनकी सीमा समझनी पड़ेगी। क्या काबिलियत है, और अगर काबिलियत, जैसे मैं अक्सर बहुत सारे और संदर्भ में कहता हूं हमारे स्टूडेंट से भी, कि भाई अगर 6 फीट की छलांग एकदम से नहीं लगा सकते तो कोशिश मत करो। हाई जंप में पहले पोल लगवाओ 3 फुट पे, फिर 4 फुट पे, फिर 4.5 पे, फिर 5 पे। तो सही बात है कि लिमिटेशंस एडवांस में समझना सबके लिए जरूरी है, हम सब मानव जाति के लिए। लेकिन दिव्यांग जन के लिए अगर ऐसा नहीं करेंगे अभिभावक या केयरटेकर्स, तो शारीरिक नुकसान या मानसिक खामियाजा और हो सकता है। तो मैं आपसे एग्री करता हूं, अगर मैं सही मुद्दा समझाऊं, कि हमें एम्पावरमेंट करनी है, लेकिन एम्पावरमेंट एम्बिशियस और माइंडलेस ना हो, और एम्पावरमेंट स्टेप वाइज हो, लॉजिकली। I hope I understood Yes, and yes, answered yes. that correctly. Yeah. And anybody else? अवतार सिंह के बाद then अच्छा, ये क्वेश्चन तो चैट बॉक्स में लिखा भी है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। राइट। हाँ, वैसे एक बात है, जी सुवर्णा, हमारी जो दोस्त है सुवर्णा राज, जी सुवर्णा राज ने, आई सॉ ऑन द लिस्ट आल्सो, एंड सुवर्णा राज ने मैसेज प्राइवेटली लिखा है, बट आई टेक द लिबर्टी ऑफ ब्रिंगिंग इट आउट टू द ग्रुप। बड़ा अच्छा लिखा है, और मेरे व्यक्तित्व के पहले 5 मिनट में ही मुझे बड़ा अच्छा लगा। सुवर्णा कह रही है, सर जब तक कोई डिसेबल्ड बच्चा खुद को साबित नहीं कर देता, तब तक वो एक समस्या ही होता है पेरेंट्स और सोसाइटी के लिए। ये बड़ी कड़वी लेकिन सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। सुवर्णा, सैडली वन हैज टू एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। हम सब चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर या कुछ मौकों पे ऐसा होता है, ये सही बात है। मैं साथ ये भी मानता हूं कि सच में, जैसे शिव कुमार ने कहा, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ रही है, हमारी जागरूकता बढ़ रही है दिव्यांग जन के हक के बारे में। समाज बदल रहा है, लेकिन शायद बहुत धीमी गति से बदल रहा है। तो ये जो बोझ या समस्या महसूस करने वाली अप्रोच वर्सेस दिव्यांग जन परिवार में हो, उसको पॉजिटिव लेने की अप्रोच अभी शायद बहुत हद तक ट्रांजिशन में है। लेकिन आपका कहने का सुवर्णा, मुझे एक और विचार हुआ जो मेरे दिमाग में था, और ये मैं अगेन प्लीज डोंट
डोंट मिसअंडरस्टैंड मी एनी वन ऑफ यू, खासकर जो अकम्प्लिश्ड केयर गिवर्स, पेरेंट्स, एडवोकेट्स हैं। जो सुवर्णा कह रही है वो एक मुद्दा है, मुझे दूसरा विचार अक्सर आता है बहुत सारे पहलुओं में कि टीवी शो पे हम लोग कई बार जाते हैं, ऐसे वेबिनार्स में कहते हैं कि दिव्यांग जन फला जगह, जैसे सुवर्णा ने जीते, मेडल जीते, फला किया। हर एक ऐसी एक सक्सेसफुल कहानी के पीछे 99 अनसक्सेसफुल और पेनफुल कहानियां होती हैं। तो हम अब वी शुड डेफिनेटली सेलिब्रेट सक्सेस स्टोरीज। About that there can be no doubt. One, to encourage those families. Two, to encourage others. But हमें सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी के रूप में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ या प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव स्टोरीज को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो जो नॉट सो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, या जहां कंटिन्यूड स्ट्रगल है, या अभी भी नेगेटिव स्टोरीज हैं, या एक्सप्लॉइटेशन की स्टोरीज हैं, उस पे ध्यान देना और उसके बारे में कुछ करना हम सबका हर लेवल पे उतना ही फर्ज बनता है जितना ये है कि हम पॉजिटिव स्टोरी को एनकरेज करें। आई सी सुवर्णा नॉडिंग हर हेड, आई एम वेरी हैप्पी। यू एग्री विद दैट सुवर्णा? यू वांट टू से समथिंग प्लीज? नहीं सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा सक्सेस स्टोरीज ही शेयर होती है हर जगह, और जो उस स्टोरीज के पीछे जो कहानी होती है वो कभी शेयर नहीं होती। तो मुझे लगता है सबसे पहले वही ज्यादा बताना और वही चीजें सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो स्ट्रगल मैंने किया है, मुझे लगता है हर एक डिसेबल जो चाइल्ड है, जो बचपन से सफर करता आता है, जो बचपन से जो शब्द उसके कानों में जाते हैं, चाहे वो माँ बाप बोलते हो, भाई बहन बोलते हो, या उसके बाद और भी बड़े बड़े होते जाते हैं तो फ्रेंड्स एंड कॉलेज एंड वो चीजें चुभती है कहीं ना कहीं। और वो चीजें तब जाके खत्म होती है जब आप कहीं ना कहीं खुद को साबित करते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बच्चा खुद को उस लेवल पे साबित कर पाए। तो क्या वो हकदार नहीं है उस प्यार का या उस अपनेपन का? तो मुझे लगता है कि हर बच्चे को वो चीज घर से पहले मिलना शुरू होनी चाहिए, कि वो केयरिंग, वो प्यार, वो अपनापन अभी भी मैं कहना चाहूंगी कि सच में नहीं मिलता। 100 में से 2 बच्चे ही होंगे जिनको फैमिली में से बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार मिलता है। अदरवाइज सबको वही नेगेटिविटी, वही शब्द सुनने में आते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम बोझ हो, या तुम्हारी हम पे मैं और क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें। तो सक्सेस नहीं, हम और सुनेंगे आगे के वेबिनार्स में आपको, पक्का। यू आर आवर स्पेशल गेस्ट ऑलवेज। यस, थैंक यू। Alok, sorry. Yeah, and somebody had raised the hand. We have the Srihan की मम्मी and Shreya. मैं बोलना चाहूंगी एक शब्द कि हमारी अचीवमेंट किसी भी सक्सेस की मोहताज नहीं है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जब हमारी जर्नी शुरू हुआ था, मैं सबसे लगी थी कि मेरे बच्चे की खूबियां क्या है। बट चलते रास्ता चलते मुझे पता लगा कि ये खूबियां ढूंढने में मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ वही सक्सेस है, और इसके चलते जो मिलेगा वो मिलेगा। क्योंकि हम देखते थे ना सक्सेस स्टोरीज बहुत, कि इसमें ये करता है, ये ऑटिस्टिक वाले बच्चे ये करते हैं। तो मेरे बच्चे में क्या है, मैं ढूंढने लगी, और मेरे बच्चे में जो भी है शायद वो, तो फिर मैंने ना अभी चलते अपने एक्सपीरियंस से वो ढूंढना बंद कर दिया। श्वेता आदित्य गुप्ता आई थिंक है, वो ये कह रही हैं, Sir, as a parent, we are trying to accomplish all our responsibilities for our Divyang child, but society is sometimes not cooperating the family and the child. श्वेता जी, कुछ शर्मिंदगी के साथ, कुछ शर्म के साथ और कुछ ग्लानि के साथ मुझे लगता है मैं और हम सब आपसे सहमत होंगे। आप जो कह रहे हैं वो सच्चाई है। जैसे हमने सुवर्णा से कहा, आप सही कह रही हैं, बहुत सारे परिवार अच्छे से और जल्दी से बदल रहे हैं, लेकिन समाज को भी बहुत समय लग रहा है।
और वही विनय भाटिया जी जो हमारे परमानेंट रिसोर्स पर्सन्स है. विनय, थैंक यू रियली फॉर बीइंग सो एक्टिव एंड ही इज सेइंग इवन बेटर. अगेन सॉरी, आई मीन मैं एक लिबर्टी लेता हूँ. बहुत सारे साथी मुझे प्राइवेटली मैसेज भेजते हैं. मैं समझ रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है. दे मीन टू शेयर इट विद द होल ग्रुप. सो मैं लिबर्टी लेके वो पूरे ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ. विनय या और कोई माफ करिएगा, अगर ऐसा कोई पर्सनल इश्यू होगा तो आई विल नॉट शेयर. विनय बहुत अच्छा कह रहे हैं. समझ बदल रहा है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं बदल रही है. इतना आसान नहीं है. ये मेरा 23 साल 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है. और आगे ऐसी चीज कह रहे हैं. विनय ने अक्सर बातें कही, बात सही है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि बॉस, चेंज इज ऑलवेज ए डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर दी सोसाइटी. और अगर मैं एक और मुद्दा लाऊं जो अगेन सिर्फ फ्लैग करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट आलोक टू कंसिडर वन सेशन ऑन दिस. आलोक, समटाइम व्हाट सर? कानून या कानूनी प्राविधान सामाजिक सच्चाइयां बदल सकते हैं क्या? Do legal provisions help change the social reality? Like many other things, I am in the middle on this. You know, मैं मानता हूं कि कानून अपने आप से सिर्फ कानून बन जाने से सामाजिक सच्चाई नहीं बदलती है. जो सोशल एक्शंस है उससे बदलती है. लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है मानना, स्वीकार करना, मुझे लगता है कि अगर कानूनी प्राविधान ना हो या निर्बल हो तो सामाजिक सच्चाइयों को बदलने में उतनी ही देर लगती है. तो आई सी दिस एज अ वेरी सिंक्रोनस नेसेसरी रिलेशनशिप, द लीगल प्रोविजंस एंड द सोशल चेंज और सोशल एक्शन. यू नो, आई होप दैट मेक्स सेंस. Yes sir. And anybody else who has any question? Yeah, please. और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? आईफोन से there is a sound. एक बड़ा अच्छा कहा है किसी ने. हेलो जी, मैसेज के जवाब में नाम नहीं है, कुछ 51C 81C. इग्नोर करके कैसे सोसाइटी को इग्नोर करे ऐसी सोसाइटी को, या फिर होम अपने बच्चे में ऐसी इंप्रूवमेंट दिखानी हो जिसे उन्हें खुद दिख जाए. वही है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो दिव्यांगजन या उसका परिवार, जैसे हमारे कोई साथी कह रहे हैं, अगर वो करें, कर सके, बहुत बढ़िया. हेलो, नमस्कार सर. मैं पूछना चाहूंगी एक सवाल. जी बोलिए. हाँ जी सर, ऐसा है कि स्लो लर्नर के सर्टिफिकेट के बारे में बताएं. लर्निंग डिसेबिलिटी, उसके बारे में क्या प्रोविजंस होते हैं? सर्टिफिकेट कौन सा मैडम? सर, लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD का. हाँ जी. ऐसा है कि भारत सरकार, जिसमें ये हमारे साथी शिव कुमार जी भी थे ना, अभी निवृत्त हुए हैं, भारत सरकार का जो दिव्यांगजन का विभाग है, उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए मैडम. अगर ध्यान में ना हो तो फिर बात कर लीजिएगा आलोक से. या तो भाई कौन सी कंडीशन के लिए और किस उम्र के दिव्यांगजन के लिए कहाँ से सर्टिफिकेट इश्यू होगा, ये रूल में डाल दिया गया है कानून के सेकंड स्टेप के रूप में. अब मैं बहुत एहसासमंद हूं कि बहुत सारे परिवार इधर से उधर घूमते रहते हैं जानकारी ना होने पर या लोगों के गलत कहने पर, कई बार हमारे यहाँ भी. लेकिन हम सबको, खासकर सरकारी संस्थानों को, रूल्स के तहत काम करना पड़ रहा है ना. तो अच्छा ये होगा कि आप NGO से या किसी और पेरेंट से मालूम कर लें या वेबसाइट से कि भाई आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो कहाँ से बनेगा, है ना. हर राज्य सरकार ने भी कर दिया है. तो दिल्ली में जो समाज कल्याण विभाग है उसने भी रूल्स निकाल दिए हैं भारत सरकार के कहने के बाद कि भाई फलां चीज यहाँ से होगी. यू नो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर हो सकती है, लेकिन यहाँ मेरी थोड़ी दुविधा है बहुत समय से. एक लेवल पे बतौर एक्टिविस्ट, मैं अपने आप को एक्टिविस्ट समझता हूँ, सरकारी क्षेत्र में हूँ, डॉक्टर हूँ, फिर भी बतौर एक्टिविस्ट मुझे लगता है कि टोटल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. कोई भी कहीं से भी सर्टिफिकेट ले ले, क्या मुश्किल है? यस, वेरी ट्रू. दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि कुछ रूल्स होने पड़ेंगे, कुछ, है ना, प्राविधान होने पड़ेंगे कि भी कौन सी चीज का, कौन से बच्चे का कहाँ से होगा. तो सर, हम दिल्ली से ही हैं, आपके इभास में भी होता होगा कोई प्रोविजन?
मैं वही बात है, बस में भारत सरकार का जो रूल है उसमें 18 साल के कम बच्चों के लिए अब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से होता है। जो बच्चों का विभाग है ना जनरल अस्पतालों का, वहां से। तो भारत सरकार ने जब ये रूल बना दिया है ना, तो उसके बाद 18 साल से कम बच्चों के लिए हम किसी भी दिव्यांग स्थिति के लिए आईडीडी के लिए खासकर नहीं दे पाते। यही दुख रहता है हमें। यस, संजय श्रीवास्तव जी, थैंक यू समथिंग? यस प्लीज, माइक ऑन किया है संजय जी। प्लीज संजय श्रीवास्तव जी, यू हैव ओपनड योर माइक। संजय विश्वकर्मा। मैं ये बोलना चाह रहा था, या मैं ये अभी सुन रहा था, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कोपिंग टुडे, आई थिंक मैं बहुत से अभी कुछ पेरेंट्स ने भी बोला स्ट्रेस थोड़ा रहता है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि हमारा जो बच्चा है, ही इज नॉट अ प्रोजेक्ट, ही इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, लाइक अदर किड्स। तो इज नॉट अ प्रोजेक्ट कि हम उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लें अपने ऊपर कि हम बच्चे का हम जो ग्रोथ है उसको एंजॉय नहीं कर पाए। हमारा बच्चे में ठीक है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, बट आई थिंक वी शुड एंजॉय हिज ग्रोथ आल्सो, द वे he is growing every day, instead of taking it as a project कि हमको रोज उसका एक डेवलपमेंट दिखाना है। Like somebody was talking about showing the development of the child and celebrating only the successful children, successful as in IDDs में जो successful हो सकते हैं। I think we should celebrate the child also. We should enjoy with the child while accepting the fact that he may not be able to do a lot of things. That's true. क्योंकि Agreed, boss. क्योंकि मैं देखा है हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी कुछ कमेंट कर देते हैं विच इज नॉट इन गुड टेस्ट अबाउट आवर चिल्ड्रन, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सोसाइटी अगर ऐसा है तो ऐसा है, हम क्या करें? व्हाट वी कैन डू इज वी कैन होप कि ग्रेजुअली ये सब और कुछ चेंज आए, बट दैट इज हाउ थिंग्स आर। गुड, या मैं एक बार फिर कहूंगा, जो मैं इन वेबिनार्स में कह चुका हूं, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स पे कह चुका हूं और अंत तक कहता रहूंगा, डिसेबिलिटी राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, दिव्यांग जनों के हक। मेरे 40 साल के साइकियाट्री और मेडिकल के करियर में मुझे पिछले 15-20 सालों में धीरे धीरे सीखने का मौका मिला और मैं अभी भी सीख रहा हूं। जो ट्रेडिशनल मेडिकल मॉडल है, जो ट्रेडिशनल हेल्थ प्रोफेशनल्स मॉडल और ट्रेनिंग है, उसमें इस चीज को आसानी से इंसान नहीं समझ पाता है क्योंकि पुराने मॉडल्स गलत थे। तो प्लीज ये भी थोड़ा संवेदनशील रखें कि जैसे सच में 2002, 4, 5 के बाद पिछले 15 सालों में सोच में और भावनात्मक पोजीशनिंग में मैं बहुत कुछ सीखा हूं और अभी भी सीख रहा हूं। I am constantly learning what I may never realize. Only a person with disability will be able to explain to me, or a caretaker. तो ये जो हमारे आखिरी साथी कह रहे थे, वो बहुत बहुत important चीज है। We will have to realize that all of us are part of a society which has had misplaced ideas and attitudes, and none of us should consider ourselves above the society. चाहे जेंडर इश्यूज हो, चाहे डिसेबिलिटी राइट्स हो, चाहे और कोई इश्यूज हो, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड सो मच एज आई मे क्लेम दैट आई एम वेरी इवॉल्व्ड एंड आई एम वेरी प्रोग्रेसिव, unknown to me I may still have blind spots, and I'm sure I have blind spots. I would be very happy to know about those blind spots, and हमें एक दूसरे के blind spots के अवगत कराना पड़ेगा। Great. So, Madhu Juneja, you want to say something? हाँ जी सर, मैं सुन रही थी, मेरा वीडियो नहीं चल रहा था, so I thought I just tried it. हाँ जी। सर, पहली बात तो मैं देसाई सर की हमेशा ऑप्टिमिज्म से, it means so much. I know जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं मुद्दे, वो बहुत ही सीरियस हैं, स्टिग्मा है, लेकिन सर का एक हमेशा जो ऑप्टिज्म रहता है इनको हैंडल करने में, वो बहुत बड़ी बात है। और सर दूसरी बात जो कही गई, that before we move to the legal framework, लॉज बने हुए हैं सबके लिए, सेक्शन है, वो है, लेकिन उससे पहले अगर हम एक मशवरा, जैसे आपका ही शब्द है, मशवरा कर लें, फैमिली के साथ बातचीत कर लें, कम्युनिकेशन कर लें, उनकी
उनकी वो प्रॉब्लम समझ लें, उनकी दिक्कतें समझ लें। और सर कई बार ये भी होता है कि जो केयरर इतने सालों से वो कर रहा है, वो उसमें अपने आप में वो, कई बार मैं कंट्रोल का शब्द नहीं यूज करना चाहती, लेकिन जो उसकी जिस तरह से वो देख रहा है वो छोड़ना आसान नहीं है। उसको कई बार दूसरे पे एक ट्रस्ट नहीं आती, फेथ नहीं आता। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी केयरर्स को कि अगर कोई मदद दे रहा है उसको प्लीज लीजिए, अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करिए, अपनी भी वेलबींग देखिए। जो रिस्पाइट केयर सर ने बात की वो बहुत जरूरी है सर। मैं इसको एक दूसरे तरीके से कहूँ, Madhu, thank you so much. Madhu is a very long time friend of mental health and disability and all these sectors. जो मधु कह रही है उससे मुझे विचार ये भी आ रहा, मैं जैसे अपने साथियों से अक्सर कहता हूं कि अस्पताल में बैठे या हेल्थ केयर एजेंसी में बैठे हम लोग प्रोवाइडर्स हैं, those who come to us are consumers. बट अगर आप थोड़ा उसे ऊपर उठ के सोचें, in life, on a given day, in a week or in a year or over lifetime, we are all consumers and providers in different capacities. There are many other situations where I am the consumer. So forget what I said a few minutes ago. That's of course correct कि ऐसे है mental health professional, मैं evolve कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जैसे लिंग भेद की बात है, जेंडर की बात है, डिसेबिलिटी की बात है, बहुत सारे राइट्स अप्रोचेस इमर्ज कर रहे हैं। मुझे विचार यह आया अपने आप से जो मैं शेयर कर रहा हूँ शब्दों में, जैसे मधु ने कहा, क्या मैं क्लेम कर सकता हूं या हम में से कोई ये क्लेम कर सकता है कि मैंने किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह जाने अनजाने में अन्याय नहीं किया? पता ही नहीं। Like Bible said, let him cast a stone who has not sinned. पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। तो ये जो इंक्लूसिव सोसाइटी का अब हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम लोग एक इवॉल्विंग समाज का हिस्सा है। जाने अनजाने में, हमारी नासमझी में, हमारी बॉड एटीट्यूड्स में होता होगा, अभी भी शायद होता होगा, पहले हुआ होगा। तो अगर हम किसी को पाते हैं राइट्स वायलेट करते हुए, तो उसके बारे में जजमेंटल इमीडिएटली ना हो जाए। Let us be empathic to especially the caretakers, families and caretakers of persons with IDD or any other disability disorder. What they first deserve is empathy and understanding. Madhu, if you have anything, sorry. नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। वो हम ना गिव अप कर देते हैं। हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अगर हम कोशिश करें, बिकॉज होता क्या है, अटेंशन हमेशा पेशेंट पे जाती है, क्लाइंट पे जाती है। उनके साथ जो फैमिली मेंबर आए, बहुत कम लोग उसको भी। अब मैं बताती हूँ, मेरे साथ एक एपिसोड हुआ था व्हेन आई वाज नॉट टू वेल। तो मेरे डॉक्टर हमेशा कभी नहीं कहते थे हाउ आर यू। मैं जब भी चेकअप के लिए जाती थी, वो मुझे कहते थे हाउ आर वी, एंड यू नो, एंड दिस स्मॉल थिंग स्टेड विद मी। तो जब मैं ठीक हुई, मैंने उनको कहा कि आप मुझे हमेशा ये क्यों कहते हैं हाउ आर वी? तो कहते हैं मैं आपको भी, आपके हस्बैंड भी और मैं भी, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम जर्नी। तो ये छोटा सा यू की जगह जब उन्होंने वी यूज किया, उसका पूरा मतलब एम्फेसिस बदल गया रिकवरी में सर। Alok, I would really like to request Anil Joshi to yeah, Anil ji, can you please and whoever else. Anil ji, हेलो जी हाँ, नमस्कार। एक तो डॉक्टर शिव कुमार का भी कथन और आपका जो अनुभव है देसाई सर, ये बिल्कुल एनकरेजिंग है। ये जरूर है, जैसे सुवर्णा ने भी कहा कि घरों में भी और समाज में भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत किया जाता है। लेकिन मैं इसको थोड़ी अलग तरीके से देखता हूँ कि देखो, किसी के भी यहाँ जब दिव्यांग बच्चा आता है और उसको जब पहली बार खबर दी जाती है, तो उसके बाद कुछ साल, 2, 4, 5, 7, 10 साल तक, और आईडीडी फील्ड में तो जहां तक मेरा ख्याल है 10 साल तक के ये समय एवरेज में होता है, उसको फुटबॉल के समान नचाया जाता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक।
कानूनी प्रावधान जरूर होते हैं, लेकिन उसका अमल करने वाले जो है वो या तो केंद्र सरकार का जिम्मा है, या राज्य सरकार का जिम्मा है, या लोकल सरकार का जिम्मा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। और जहां कहीं जाते हैं उनको ठगी महसूस होती है, ये मैंने देखा है। आई वॉज लकी कि मेरे पास सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर आई, और मेरी बेटी जब मेरे ख्याल से 6-8 महीने की थी तभी मैं NIMH सीधा पहुंच गया था बगैर अपॉइंटमेंट के। कहने का मेरा मतलब है वी विल हैव टू डू द समाज और सरकारों को ये देखना है कि जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसी के साथ उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन किट दी जाए कि आपके लिए सही रिसोर्सेस कौन से होंगे और उनका सही वक्त पर सही इस्तेमाल कैसे होगा। अगर ये ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज होगी तब सुवर्णा जो कह रही है उस टाइप के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। और मैंने जो प्रयास किया है अनेक सालों से कि हम जहां कहीं से पेरेंट्स के साथ नेटवर्किंग करते हैं, वी कैच देम यंग। और मेरे पास जैसे लेह लद्दाख से लेके अरुणाचल से लेके केरला से लोगों के कॉल्स आते हैं, हम उनको ये बताते हैं कि क्या नहीं करना है। तो एक बार जैसे मैं कहता हूं कि 360 डिग्री में से एक दिशा निर्देश हो जाए कि आपने इसी दिशा में चलना है, तब पेरेंट्स और फैमिलीज और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के एफर्ट जो है वो फोकस तरीके से सही दिशा में 100% कारगर साबित होते हैं। और ये अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस सोसाइटीज मेरा यूनिफॉर्म तजुर्बा है। तो अगर इस पे पेरेंट्स एम्पावरमेंट अर्लीएस्ट, जैसे बच्चे का डायग्नोसिस होता है, चाहे उसको आप सर्टिफिकेट दो या ना दो, मेडिकल डायग्नोसिस हो गया है या इवन फ्लैग्ड है, मुझे बड़ी उम्मीदें थी RBSK के थ्रू कि वहां एटलीस्ट फ्लैगिंग हो जाएगा। दुर्भाग्यवश सभी जिलों में ये नहीं हो पाया है। और तब भी मैं जब नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड मेंबर था तब भी मैं इसको परस्यू करता था। डॉक्टर अरुण सिंह भी मेरी सुझावों को जानते थे। मैं मानता हूं कि हमारे देश में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, लेकिन इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर पर अमल करना बहुत जरूरी है। वो ही एक कारगर तरीका है, ये मेरा मानना है। ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि पहले बहुत बोल दिया है, तो इसके ऊपर मैं आपके विचार चाहूंगा सर। आई थिंक अनिल जी, जो आप और बाकी साथी कर रहे हैं एक्टिविस्ट एट पॉलिसी लेवल, एट एडवोकेसी लेवल, इज वंडरफुल, इज वेरी गुड। और आज आपने बात की वो मैंने आपकी तरफ से 1-2 बार सुनी हुई है। यू आर वेरी राइट। 2-3 मुद्दे। एक तो ये कि शुरू के सालों में बहुत पेंडुलम सा स्विंग करता है पेरेंट्स का इमोशनल पोजीशनिंग, एक। सेकंड, एट वेरी अर्ली स्टेज being pre-informed or informed in advance would be a big help. Unfortunately, हमारे समाज में बहुत सारे परिवार इससे महरूम रह जाते हैं। एंड पॉलिसी लेवल पे जैसे हम सब कह रहे हैं, बहुत बहुत जरूरी है मच मोर ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे यही विचार आया, अनिल जी, आप और बहुत सारे और साथी, शिव कुमार साहब पुराने दोस्त हैं, inclusive society is a utopia, and like all utopias may seem difficult to achieve or almost impossible to achieve, and yet it is the fundamental human duty of every person, especially those of us who are better equipped with knowledge or intelligence or whatever else, the fundamental duty that we all collectively work towards that utopia. So हमारे जैसे बड़े देश में, समाज में inclusive living, inclusive society is very difficult, far cry, but that doesn't mean we should not try. And in fact, because it is difficult, हमारी कोशिश डबल या ट्रिपल या 10 गुना होनी चाहिए। Sir, I beg to differ here. Sorry for saying that. Go sir, please. See, inclusion is a journey, so it cannot be a utopia. And the journey has to start with you, and it has to start with in every mind.
is my belief. Agreed. So unfortunately, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? I am inclusive for IDDs. I am inclusive for visually impaired. I am inclusive for physically handicapped. ये इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया. I cannot be inclusive for someone. It is a mindset. It's my own mindset. I'm happy that the process has started, and believe me, I experience it every day, not just through my daughter, but through hundreds of children whose parents give me feedback. But at the same time, even parents will have to be sort of empowered and reassured that you take the first step, we are there with you for another 10 steps. और अगर पेरेंट्स सही स्टेप लेते हैं, मेरा अनुभव ये रहा कि आपको सहारा मिलता है, बशर्ते आप सिर्फ एक पॉजिटिव मैसेजिंग, यू पेरेंट्स and the family members or the caregivers have to be a positive interface with the society, because society is otherwise overburdened with their own priorities, likes and dislikes. In that, our children's condition does not come anywhere in the first 100 priority. तो वो हमने टॉप पे लाना, ये हमारा काम है. अगर हम पॉजिटिव इंटरफेस होते हैं या हम कैटालिटिक एजेंट्स होते हैं, तो believe me, 100% आउटकम अश्योर्ड है. बस इतना ही मुझे कहना है, इसलिए मैं इसको यूटोपिया नहीं मानता. It is a process. No, one point over here. I must really appreciate Anil ji for the effort he had taken right from the beginning of his daughter's birth, the time he came to know about his daughter's condition, and which led for him to be a very active member in Parivar. And we should say that the Parivar, which has emerged as a small group and which have spread into a very large group, really incorporated the concept of family and the Parivar into its function. Thank so you, what Anil ji just now spoke about his personal experience in bringing about the development of the child in collaboration with not only with the parents, but in fact with the inclusion, that is the society was very much involved in whatever activities which we had done, or rather the Parivar had done, and in which Anil ji was a very prominent member. We should be very proud of him, and I'm sure this activity will continue, and it will become a much major Anilji, I just need to say one thing. It's by default that I met your daughter about 5 months back. I had gone shopping, and here was this happy young girl who showed me what I wanted to buy. Yeah, thanks. I didn't know कि किसकी बच्ची है, कहाँ, मतलब who has brought her up. But I think today when I'm seeing you sitting across in a webinar, she is such a happy girl, and the way she goes about doing what she is, that I have gone back to Big Bazaar so many times just to interact with her, because she is so positive and she is so she knows everything. You need something, I had a specific color issue, she helped me. So I think, sir, the way you have done what you have, I'm so glad that at least I got a forum to interact with you, sir. Thanks so much. I'm happy to share that even during lockdown, initially she was quite at a discomfort because she was missing her work and her colleagues. And I was so happy that she found her own way of how to do WhatsApp conferencing calls, and she used to interact with her colleagues who are new to Delhi because they come from Uttarakhand or Himachal. Yes. And she was addressing and reassuring them, don't worry, I am there to help you. Don't go back, you can come home, etc. Now she has joined back for the past 3 months. She's so happy to attend, even though
because of partial opening of the lockdown, everyone is being called only twice a week. So just about 2 days back, I have written a blog. I can share that link with you on coping up during the lockdown. So thanks for your appreciation, and we are so proud of what my daughter does. And believe me, every day she gives us surprises, while at home or even on the job. And that's what I try to tell the parents, that there is no dearth of support in the society. Inclusion will happen, provided you communicate things properly. You make sure that all the positivity in a truthful way gets reflected. Last sentence, when I came to Delhi about 13 years back from Nagpur, in Nagpur also, we had not left a single element from the society, may it be police or district or High Court Bar Association. You name a social group, you name a club, you name a government department, we had reached out to them through our journalist friends also. So sensitization and support because of inclusion happens. When I came to Delhi, I knew only one family in Delhi. Today, I know thousands of families with whom I am connected, thanks to my daughter and my activism in this sector. So that's the kind of proactive approach which parents need to learn and form the bridges. Dr. Desai, if you recall, I have been saying this. I remember, very correct. Yeah, actually force आपकी तरफ से ही आना पड़ेगा. बिल्कुल. Thanks. Okay, so I will take the Hello, sir, ma'am. Yeah, Nitin, want to say? Yeah, please. Come up. Alok sir, मैं बोलूं sir? जी बोलिए. Okay sir, डॉक्टर लोकी, अभी तो अनिल जोशी सर हैं, उनसे मेरी बात हो रखी है, तो मैं उनके घर जाके चाय पीऊंगा, तब आराम से बात करूंगा सर से. बिल्कुल. मेरे को हाँ सर थैंक यू. एंड सर ने एड्रेस दे दिया है. ही इज वेरी नाइस पर्सन, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. अच्छा, अभी यहाँ पे बहुत सारी डिस्कशन हो रही है. डॉक्टर निमेश भी हैं, इंक्लूसिविटी के ऊपर भी बात हो रही है. अब मैं ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ इंडिया की तरफ से स्पेशल मैट्रिमोनी का. मैं उसका भी आपसे बात करता हूँ, उसके बारे में भी कुछ थोड़ा मेरा पर्सनल भी है, मैं बताता हूँ आपको. सबसे पहले जो आज बोलने आए थे अवतार जी आए थे सबसे पहले. अगर आपको याद हो तो अवतार जी मेरे साथ 23 तारीख को थे, इनेबल इंडिया की प्रोजेक्ट मीटिंग में थे, प्रोजेक्ट डिस्कवरी की मीटिंग में. एंड उस दिन कुछ हुआ था. ये अवतार जी हैं. थैंक यू सर. ओके, अच्छा, यहाँ मेरा स्पॉटलाइटेड कर दिया है वीडियो. तो उस दिन समथिंग हैपेंड मी जो मुझे ये याद दिलाता रहता है हमेशा कि इंक्लूसिविटी नहीं है बिल्कुल भी. अभी स्पेशल मैट्रिमोनी में मैं वो पर्सनल है, बहुत मैं शेयर नहीं कर रहा क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं इस वक्त. एंड मुझे कभी डॉक्टर निमेश के साथ बैठने का मौका मिलेगा, वो मुंबई में रहते हैं, तो बैठूंगा, बहुत मजा आएगा. क्योंकि जिस वे में वो बात करते हैं कॉन्फिडेंस में, फिलोसफिकली, वो तरीका मेरे पास बहुत बढ़िया है और बहुत जबरदस्त तरीके से बात करता हूँ मैं. लेकिन अभी इंक्लूसिविटी के ऊपर बात करूंगा. मैंने यूके से है, स्कॉटलैंड से, ग्लोबल प्रोजेक्ट है एंड स्पेशल मैट्रिमोनी. तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया. उसने कहा कि नितिन आप बताओ, मैं उसको 1 महीने से गाइड कर रहा हूँ पूरे ग्लोबल वे में, कितना जो यूएसए का है या कोई स्पेन से है या फिर कोई ब्राजील से है. तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि नितिन नॉन डिसेबल लोगों को स्पेशल मैट्रिमोनी में रखें. मैंने उससे जवाब दिया कि हाँ रखना चाहिए, ऑप्शन जरूर रखो. लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. मैं हियरिंग एड्स लगाता हूँ और ये बहुत बड़ा भ्रम है. लोग कहते हैं नहीं क्या हो गया, हियरिंग एड लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो हो ही जाती है. लड़कियां पसंद नहीं करती बिल्कुल भी. मैं 40 साल का बैठा हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी. कोई नहीं पसंद करता, चाहे आपके पास पैसा हो, घर में अच्छी फैमिली से हो, नोबडी केयर. मैंने स्पेशल मैट्रिमोनी जो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बैलेंस बनाना है और बैलेंस ऑटोमेटिकली बन रहा है बिकॉज डिसेबल गर्ल्स भी हैं, डिसेबल बॉयज भी हैं. तो बैलेंस इंपॉर्टेंट है.
अभी मैं एक बात ये बोलूंगा, अगर वैसे कॉपिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर है ये टॉपिक, ये पूरा सेशन, तो मैं कॉपिंग के लिए बात करना चाहता हूँ, लेकिन इंक्लूसिविटी का बहुत ज्यादा सुना है मैंने आज, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, जो मैटर है वो चेंज हो रहा है। इंक्लूसिविटी जो है ना, वो बहुत कुछ बोल सकता हूँ मैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंक्लूसिव सोसाइटी और ये जो पूरा है, हमें अपने आप भी करना पड़ेगा सब कुछ, सबको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी सब हो सकता है। वैसे बहुत डिफिकल्ट है इंक्लूसिव। 40-50 साल की बात करें या 2 साल का मुझे पता नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद। मेरे को रितिका दीदी ने समझाया था, नितिन ऐसे भी मत बोलना क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बहुत प्रैक्टिकल से बात करता हूँ। इंक्लूसिविटी जो है वो बहुत टफ चीज है। पहली बात, नॉर्मल आदमी कोई नहीं पसंद करेगा। अब मेरी अगर आप किसी डेफ लड़की से कराएंगे ना शादी, मेरे फैमिली वाले अलो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं यार तू सुन लेता है तो स्पीच भी नॉर्मल है, वो तो सुन भी नहीं पाती, बोल भी नहीं पाती, वो तो तू उससे क्या बात करेगा, वो क्या सुनेगी, घर में अगर 4 लोग बैठे होंगे तो कैसे बात होगी। ये चीज होती है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी स्पेशल मैट्रिमोनी इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, लड़के ने 4-5 साल रिसर्च करी और मैंने उसकी सारी बात सुनी। मैं 1 महीने से उसके साथ काम कर रहा हूँ, हमारी मीटिंग भी हुई है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेके आया वो। उसने मुझे कल वो बनाया ग्लोबल, सॉरी कल उसने मुझे इंडिया से एम्बेसडर बनाया। तो इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए मैं ये बोलूंगा, मतलब मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वी आर डू आवर बेस्ट। मैं अपना एग्जांपल भी लूं तो मैं समझता हूँ सर टाइम बहुत कम है, मैं अपना एग्जांपल भी लूं, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी बस खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मैं वो क्या कहते हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और इंक्लूसिव ना तो बनी है। अनिल सर IBM से हैं, IBM की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे। IBM ने साफ मना कर दिया कि हम ग्रुप ट्रेनिंग देंगे, 1-on-1 ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो मुझे छोड़ना पड़ा IBM, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। 2012 में छोड़ा था IBM। और अगर आप शादी की बात करें तो नोबडी केयर्स, अगर आपको प्रॉब्लम है तो लोग नहीं देखते, लोग कहते हैं यार इनको प्रॉब्लम है, हम क्यों शादी करें, हमारी लड़की तो नॉर्मल है। इवन हेयरिंग एड वाले लोग भी जो हेयरिंग एड लगाते हैं वो भी मना कर देते हैं। ठीक है, बाकी रही कॉपिंग स्ट्रेटजीज की बात, तो मैं डॉक्टर निमेश से बात करता, पर मैं अनिल सर से भी बात कर सकता हूँ। ऑलरेडी मैं डॉक्टर चिंतन से बात कर चुका हूँ, शी गाइडेड मी वेरी वेल। कॉपिंग तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे साथ जो है, मैं जैसे काफी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, चाहे डिसेबिलिटी एडवोकेसी हो, सो मेनी चीज। अभी मुझे इमोशनल सपोर्ट बहुत चाहिए था 30 तारीख को, जिस दिन अवतार जी थे, तो क्या कहते हैं, कुछ हुआ मेरी लाइफ में, तो हम लोगों को जो है साइकोलॉजिकली बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। जो दिव्यांगजन होते हैं, हमें फैमिली सपोर्ट करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और सपोर्ट सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल। कि हमारी लाइफ ऐसी होती है कि अभी सर की फोटो आ रही है, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सर, थैंक यू सर। हमारी लाइफ ऐसी होती है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस हैं कि हमें सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री। मैं जानता हूँ आप लोग को बोर हो गए होंगे, खत्म कर दो यहीं पे, सॉरी। नितिन बिल्कुल नहीं, आपने बातें सब दिल से कही और अच्छी कही, प्लीज बी श्योर, अच्छी बातें कही और दिल से कही। लास्ट जो कही वो सबसे उम्दा थी, सपोर्ट एक या दूसरे प्रकार से निहायत ही जरूरी है फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली दिव्यांगजन, हम सबके लिए। जैसे मानव जाति की स्थिति बदल रही है, शायद सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट नितिन, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, डोंट फील डिसहार्टेंड। अनिल जोशी जिसको सफर कह रहे हैं, जिसको मैं आदर्श कह रहा हूं, वो एक ही कॉन्सेप्ट है बॉस, और मुश्किल है, कोई बात नहीं। I'll go for the final remarks with Shiv Kumar sir. Yeah. Shiv Kumar sir, yeah, please. I would definitely like to thank all the participants
program. I make one point in which Dr. Desai sir was talking about the negative component of the coping style. I'm coming back to coping again. That one thing which we have to remember ourselves, or we have to remind our parents, is that there is one reaction or one strategy which is not really a desirable kind of a strategy, which we have seen quite often with the parents, the kind of denial stage which they adopt. They pretty well know that there is a problem existing, but the coping strategy which they use is that they take a stand that they believe themselves, or they make others believe that there is no problem exists. They deny the problem. And this denial, which is a conscious kind of a denial, definitely would give them mental instability, or rather it gives a lot of emotional problem. So now the next coping strategy they have to use is to how they cope up with this pressure, or the strategy which they have used purposely, which is not really normal. This is what we have seen, is that the people start avoiding seeing the situation. We have seen the initial stages like a tendency to reach home. So they think that the late we reach, the practical or the real situations. And the strategy again which they use to reach late is probably overwork or stay back in office, or stay back with friends. And we have seen the extreme level people using by getting into addiction behavior. Quite a lot we have seen a kind of coping strategy used by the responsible members from the family of dependence on the drugs. I would say that this will only complicate their coping strategy. This will only further give more issues to the existing problems which they have to face in a realistic. Second thing which Dr. Desai had just made a passing comment is the burnout. Probably many times the parents or our clients take the service providers for granted. There is an umpteen number of requirements, umpteen number of demands which the professionals need to tackle. And there are some situations which may occur that they won't be able to meet their requirements. So especially with the children with IDD, the usual comments which we hear is that the parents, even after 1 year or at the end of the second year in the school, when they come for the meeting, they say that मेरा बच्चे को अभी तक कुछ फायदा नहीं मिला. This is where the realistic or the realization about the child's condition has not gone into properly. We all know that there is a limited function. We all know that what we are working, the professionals working, is a small gap at the level of their present functioning till the level of their maximum optimal level of functioning. The professionals are trying their level best to see that this gap is filled. That being filled may not show a very promising kind of output, but the parents have a high expectation. The resultant of this comment on the professional is one thing which maybe we the professionals ourselves have to look into, and I would request the parents also to look into that. The teachers or the professionals should not end up into a condition known as burnout. Burnout is a situation where professionals who are in the service providing sectors over a period of time gets a situation that there is no point in working further, and they themselves fall into the
prey of what they have been trying to help the others. These two things I just wanted to highlight, and otherwise, sitting on this side of the table, I would like to say that this is something which we need to continue to have discussion, and there is no end to this, because day by day, every day we have a new challenge, every day we have a new coping style, which need to see that it is effective as such. I must thank Alok ji again. I'm very proud that he is from NIMH, and he has grown to the fullest potential of what he would have taken from NIMH and given a real kind of a model to the country through his activities. And Desai sir, I'm sure we will be continuing to work together. I just wanted to highlight one more point. Yes. It was, I think it was in 2012 or so, sir was one of the members in the 12th Planning Commission sub. And he is still working on it. And now we are proud that we have the National Institute of Mental Health Rehabilitation at Madhya Pradesh. And it is this seed which was sown by Dr. Desai in one of the meetings, subcommittee meetings of the Planning Commission. I would also place our observation to our Rakhi. Rakhi was very active, giving us the visuals and the effort to see that this discussion was reaching everybody in an equal manner. I would express my thanks to this effort. Thank you. Thank you, sir. Desai sir, your... This is an ongoing discussion, a journey, as my friend Anil said. So we will keep discussing, we'll keep talking. Thank you. Thank you. And in that way, we are coming on again on Wednesday, September 30th at 3 p.m. with good practice episode on super moms. The super moms we are going to project. Our Mashwara team has utilized the resources for reaching out more than 151,270 participants so far, and we are targeting to reach about 5 lakhs participants by the International Day of Persons with Disability on 3rd December 2020. With our 2 programs, the Mashwara and Man Bhaban, and that other 3 programs, I can say, other is the Gyan Sala. So Mashwara series is all for you all, and circulate and join together. And we have been organizing our Golden Jubilee episode. Sir ने last episode में कहा था कि कुछ हम लोग 50 पूरा कर रहे हैं. So we will do something on that Golden Jubilee episode. So we'll go for the final remarks by J.C. Gupta sir. Yes, Gupta ji. Gupta sir. Sir, you can unmute sir. Unmute sir. शिव कुमार जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. After a long time. सर एक तो ये होता है कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट कोपिंग स्ट्रेटजीज, तो उसमें क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे को आती कहाँ से हैं? प्रॉब्लम आती है कि हम अपने बच्चे को दूसरे जो हमारे बच्चे और फैमिली में हैं, मेरे अपने बच्चे हैं या मेरे छोटे भाई बहन के बच्चे हैं, छोटे भाई के बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, उनसे हम कंपेयर करना शुरू कर दें. तो पहली चीज तो ये है कि अगर इफ यू वांट टू कोप विद द कोपिंग स्ट्रेटजीज में, कि डू नॉट कंपेयर चाइल्ड, योर चाइल्ड इज विद अदर चाइल्ड, योर चाइल्ड इज यूनिक. वो अद्वितीय है, उस जैसा बच्चा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है. नंबर 1. नंबर दूसरा कि वन कोपिंग स्ट्रेटजीज, कि मैंने एक व्यक्ति के साथ में एक स्ट्रेटजीज काम की, तो इट मे नॉट वर्क विद फॉर ऑल. तो हर एक व्यक्ति के लिए हमको अलग अलग कोपिंग स्ट्रेटजीज का चयन करना पड़ेगा, किसके साथ में हमको कैसे काम करना है. क्योंकि एक के साथ में जो काम करता है, इट इज जस्ट लाइक एक्शन रिसर्च. जो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो एक ग्रुप के साथ में हमने काम किया, वो that may not work with the other group. Then और 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा अगर आलोक जी टाइम देंगे, कि डू थिंग्स टुगेदर. कि कोपिंग स्ट्रेटजीज के अंदर क्या होता है कि हम उस बच्चे को अपने हाथ से खिलाना शुरू कर देते हैं, अपने आप से कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं. तो डू थिंग्स टुगेदर, उसके साथ में खाइए,
खेलिए, तो वहां पर काफी सारी आपकी जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी। देन टॉक एंड लिसन, एक कॉपिंग स्ट्रेटेजी है टॉक एंड लिसन, कि हमको बच्चे के पेरेंट्स कह देते हैं मैं इसके साथ में क्या बात करूँ, तो मेरी बात को समझता ही नहीं है, फिर भी हमको उसके साथ में बात करनी चाहिए सो दैट ही फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ओननेस। और जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड ओननेस आएगी तो वो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी कम हो जाएगी। एंड वी शुड ट्राई टू लिसन, लिसन मींस व्हाट ही वांट टू से, उसको अंडरस्टैंड करके उनको हमको पूरा करना चाहिए। शो एप्रिसिएशन, वो जो भी काम करता है, जैसा भी करता है, हमको उसके लिए एप्रिसिएशन शो करना चाहिए। डेवलप सोशल सपोर्ट। अक्सर होता क्या है कि हमारी जो समस्याएं वो बढ़ती जाती हैं जब हम उस बच्चे को घर में सीमित कर देते हैं, कमरे तक सीमित कर देते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स जो बाहर से आते हैं, सोशल गैदरिंग जो हमारे फैमिली की होती है उसमें नहीं मिलाते हैं, और बाहर ले जाने की तो बात बहुत दूर की बात है। तो वो सोशल सपोर्ट हमको उन बच्चों के लिए बहुत बहुत आवश्यक होती है अगर वी वांट टू कोप विद द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, क्योंकि जब हम सोशली इसको मिक्सअप करेंगे तो वहां से हमारे को बहुत सारी सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारे मशवरे मिलने हमको शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी हिदायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो वो हमारे को बहुत फायदा करेगी। और लास्ट में जो है वो प्रोफेशनल सपोर्ट, कि जहां तक संभव हो सके फैमिलीज को अपनी मुश्किलात को खुद सामना करना चाहिए। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए सबसे लास्ट में जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल सपोर्ट में बहुत सारी बंदिशें हो जाती हैं। आई थिंक डॉक्टर साहब विद एग्री विद मी कि वहां हम डूज कम बताते हैं, डोंट्स बहुत ज्यादा बताते हैं। तो वो डूज हमको ज्यादा बताने चाहिए, डोंट्स नहीं बताने चाहिए। हम ये कह देते हैं इसके साथ में ये भी मत करो, ये भी मत करो, जबकि होना चाहिए अगर हम पॉजिटिवली बात करें कि हमको आप इसके साथ में ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वी शुड गिव ए नंबर ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक मे बी I may be wrong or right. Thank you very much, Alok ji. Thank you, sir. Great, sir. Shiv Kumar ji hai chote. Yeah. So I'll say thank you, and it is my privilege to extend my heartfelt thanks to all for participating on this 45th episode of Mashwara on behalf of Manovikas team, Manovikas family, and Mashwara team and entire institution. First of all, I extend the thanks to Almighty God, and second, I also thanks to the internet connectivity. Today it was very good, so thank you, Internet Baba. And on my behalf, I extend very heartfelt thanks to first. Today I'll give the thanks to Desai sir for keeping time, pulling time for Mashwara and gracing us and mentoring us. And my big thanks to our guru and we can say our teacher Shiv Kumar sir for gracing the occasion and sharing your findings and opinions and thoughtful informations today. So I must mention my deepest sense of appreciation for you, sir, and thank you very much for coming here. And again, thank you very much, Gupta sir, for participating and putting your thoughts. Thank you, Anil sir, and all the persons, Avtar Singh ji and all. Thank you for joining with the very live examples or live discussion. So thank you very much. And I give the big thanks to all the volunteers, Adya, Namo Narayan, Amjad, and Pratibha. So all they are doing good volunteering for us, Mashwara. So I also extend the thanks to my staff, all the staff team members, then Rakhi for sign language interpretation, then Kanishka, then all Indra, Ruby, Dharamjeet, and everyone. So thank you, Nistha, everyone. Thank you very much for backing the support and all these things. And then finally, the wonderful our guests and participants, for your active participation is very important, and do keep it doing with us. And thank you very much for your active participation. And thanks a lot for all who are directly and indirectly involved in this program. So Jai Hind. So thank you very much. आप सभी को धन्यवाद, खास करके हमारे जो आज विशेष मेहमान विशेष वक्ता डॉक्टर निमेश जी देसाई सर और टीसी शिव कुमार सर का
हार्दिक धन्यवाद। और आज के एपिसोड में मैं कहता हूँ कि गुप्ता जी भी बड़े अच्छे विचार रखे हैं सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और we have seen that our many advisory group members and then the other members were participating in this mashwara, so thank you all, so thank you everyone, and आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए बहुत बहुत आभार। So thank you Subarna, thank you all। सर शिव कुमार जी चले गए क्या? जी लग तो